Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a topic from the pharmaceutics. The topic name is dosage form according to the route of administration. Before proceeding further, one must know that what is the drug and what is the dosage form. The main difference between the drug and dosage form is that drug basically एक एजेंट होता है, chemical agent that is used for the diagnosis, mitigation, basically for the prevention of disease, for treatment, cure of any disease in the humans or animals. While the dosage forms are the means, are the sources through which that drug or chemical is delivered in the body towards its site of action. ठीक है, डोजेज फॉर्म वो सोर्स था, वो मीन्स था जिसके थ्रू हमने वो ड्रग या वो केमिकल बॉडी के अंदर डिलीवर किया अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच के अपनी परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है, उसके बाद डोजेज फॉर्म जो होती हैं बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट होती हैं जो कि ड्रग को कंटेन कर रही होती हैं. उनके अंदर ड्रग प्रेजेंट होती है और रेडी टू यूज़ फॉर्म में होती हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट्स. ठीक है, इसके अलावा डोजेज फॉर्म में बेसिकली ड्रग के साथ साथ एक्सिपिएंट्स भी आती हैं, लेकिन ड्रग में सिर्फ और सिर्फ प्योर ड्रग होती है. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डोजेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर रूट ऑफ एक्शन. According to the route of action, the basically dosage form or the preparations are divided into the following types. The first type is the oral और enteral route. ठीक है, oral route में basically जो dosage forms हैं, जो preparations हैं, उसमें आता है tablet, capsules, syrups और suspension. Next to the oral is the topical route. Topical route basically contains the ointments, gels, creams and paste. Next to the topical route is the ophthalmic route. Ophthalmic route basically, ophthalmic word indicate the eyes, so ophthalmic route involves the installation of drops into the eyes. Next to the ophthalmic route is the parenteral route. Parenteral word basically is derived from the two Greek words. The first word is the per and the second word is the enteral. Per means for or away. Enteral stands for the alimentary canal. Parenteral route means away from the alimentary canal. Away from the alimentary canal, the routes that are used as a parenteral route are might be intramuscular, intravenous, subcutaneous, intraarterial, intrathecal or whatsoever. Inhalation. Next is the inhalation. Inhalation में basically आता है aerosols और nebulizers. Next to the inhalation route is the otic route. Otic route basically, the word otic denotes the ears. It means the installation of the drops into the ears. Next to the otic route is the rectal route. Rectal route basically involves the suppositories or enema. Next to the rectal is the vaginal route. And the dosage form that relates to the vaginal route is the pessaries. Next is the examples of the drugs according to their dosage form. ठीक है, अगर होगा सॉलिड डोजेज फॉर्म तो आएगा टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सॉलिड और कम्पैक्ट फॉर्म. ठीक है, डोजेज फॉर्म की वो डोजेज फॉर्म जो सॉलिड होगी या कम्पैक्ट फॉर्म में होगी उसमें आते हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, सैशेट्स आते हैं और लोजेंजेस आते हैं. और सॉलिड के अलावा जो अदर रूट है हो सकती हैं डोजेज फॉर्म, वो हो सकती है सेमी सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैशियस भी हो सकती है. Semi-solid dosage forms includes the ointments, creams, paste, gels, lotions और suppositories. Liquid dosage form में basically हमें पता है कि syrups आएंगे, suspensions होंगी, solutions होंगे, drafts होंगे, drops आएंगी, emulsions आ सकती हैं, colloidals आ सकते हैं और gaseous route में basically inhalants आएंगे या फिर aerosols आएंगे. ठीक है, these are the main or basic channels for the drug administration: enteral, parenteral and topical. At first, the oral route. Oral route is also known as the enteral route, and oral route refers to two methods of administration. The first method is applying topically to the mouth. tablet ली और मुंह में डाली और पानी पिया और अंदर चली गई. Second route होता है sublingual route. ठीक है, under the tongue. Placement of the drug under the tongue. ठीक है, तो उससे ड्रग जो है वो डायरेक्ट कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब होगी. ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है उसमें अब्जॉर्ब होगी. ये भी एंटेराल रूट में आएगा. ठीक है, PO पर ओरल. ठीक है, ये एब्रीवेशन है जो कि इंडिकेट करती है कि ओरल रूट से मेडिकेशन लेनी है.
Next are the advantages of using the oral route. Advantages are basically convenient होते हैं, convenient to use, can be self administered, pain free होता है और easy to take होता है. इसके अलावा absorption जो इसकी होती है whole length of GIT में हो रही होती है और इसके अलावा cheap भी होता है as compared to the parenteral route. These are the examples of the oral dosage form that includes the tablets, capsule, liquid, solution, suspension, syrups, elixir or whatsoever. Next is the systemic parenteral. Systemic or parenteral. Systemic stands for within the blood circulation. Parenteral means away from the alimentary canal, means the drug is taken via a needle, via injection, via a catheter that is inserted into the body. ठीक है, जो टर्म पेरेंट्रल है पहले भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि ये टू ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है. पैरा मीन्स आउटसाइड, एंटीरोन मीन्स इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल. दिस रूट बेसिकली पेरेंट्रल रूट जो है वो बाईपास करता है एलिमेंट्री कैनाल को. अगर एलिमेंट्री कैनाल बाईपास हो रही है तो इट्स मीन 100% बायोअवेलेबिलिटी होगी ड्रग की और फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो नहीं होगा. ठीक है, और एग्जाम्पल्स ऑफ दी सिस्टेमिक और पेरेंट्रल रूट इंक्लूड्स द इंजेक्टेबल्स लाइक IV, IM, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राआर्टीरियल, इंट्राआर्टिकुलर, इंट्राथिकल और इंट्राडर्मल. ठीक है, और नेक्स्ट टू द पेरेंटेरल इज़ द इनहेलेशन. इनहेलेशन इज़ बेसिकली अब्जॉर्प्शन थ्रू द लंग्स. ठीक है, अब्जॉर्प्शन किस चीज़ की? गैशियस पार्टिकल्स की और एरोसोल्स की. ठीक है, उसके बाद हम पास आते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं इंट्रावेनस रूट यूज़ करने के और पेरेंटरल रूट यूज़ करने के ओवर द एंटेरल रूट. जो पेरेंटरल रूट होता है उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है और डिज़ायर्ड ब्लड कंसनट्रेशन अचीव हो जाती है विद इन 1 मिनट. ठीक है, लेकिन जो ओरल रूट होता है उसको उसकी एक्शंस के लिए एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, और इसके अलावा फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो अवॉइड हो जाता है. गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन हो जाती है, मतलब जितनी हम ड्रग देंगे वो होल जितनी दी है, अगर 1 ग्राम दी है तो 1 ग्राम ही एक्ट करेगी, 1 ग्राम ही ब्लड सर्कुलेशन में अवेलेबल है. लेकिन अगर वही 1 ग्राम अगर हम ओरल रूट से देते तो वो 50 to 70% बायोअवेलेबिलिटी होती. इट मीन्स डैट 500 और टू 700 mg वो असर करती ब्लड के अंदर. ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि इरिटेशन होती है, सेलुलाइटिस या फिर इसके अलावा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है साइट ऑफ इंजेक्शन पे. जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जा रहे होते हैं, फ्रीक्वेंट इंजेक्शन जहाँ पे लगे हैं वहाँ पे सेलुलाइटिस, इरिटेशन और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है. इसके अलावा लेस सेफ होते हैं, रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता क्योंकि 100% बायोअवेलेबिलिटी है और टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑनसेट भी इनका जो है 30 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड्स तक होता है, मतलब विद इन 1 मिनट एक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, और इसके अलावा एक्सपेंसिव भी होते हैं और पेनफुल प्रोसीजर भी है. ठीक है, अब हमारे पास आता है टॉपिकल रूट्स. टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली ये होता है कि एप्लीकेशन हमने ड्रग अप्लाई करनी है डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन सरफेस पे अप्लाई करेंगे. उसमें कौन कौन सी अब एग्जांपल्स आ जाती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी हो सकती है, आइज़, नोज़, ईयर्स, लंग्स, वेजाइना, यूरेथ्रा और कोलोन. ठीक है, अब लंग्स यहाँ पे इन्हेलेशन में यूज़ हो रहा है. ईयर्स और आइज़ और नोज़ जो है ये बेसिकली इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रॉप्स जो आँखों में, नाक में, कान में कतरे डाले जाते हैं, ड्रॉप्स डाले जाते हैं उसके लिए. ठीक है, वेजाइना में पैसिरीज डाली जाती हैं. ठीक है, तो ये सारी मेडिकेशंस इसलिए हैं, ये सारी टॉपिकल रूट में आती हैं. उसके बाद हमारे पास आता है कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं टॉपिकल रूट की. टॉपिकल रूट की एग्जांपल्स में हमारे पास आता है क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशंस, जेल्स, ट्रांसडर्मल पैचेस, डिस्क, सॉल्यूशन, सस्पेंशन. ये आइज़ और एयर्स के लिए सॉल्यूशन हो सकते हैं, सस्पेंशन हो सकती है, ऑइंटमेंट हो सकती है, लाइक एज पॉलीफेक्स आंखों में डालने के लिए देते हैं. और डिफरेंट आई और एयर ड्रॉप्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में, लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है जो कि आइज़ में डालने होते हैं, एयर्स में डालने होते हैं. इंस्टॉलेशन का वर्ड जो है वो ड्रॉप्स को आई में, एयर्स में, नोज़ में डालने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, उसके बाद आता है नोज़ एंड लंग्स. नोज़ एंड लंग्स में बेसिकली वो आ जाते हैं जैसे नेब्यूलाइजर्स हैं, स्प्रेज है, एरोसोल्स आ जाते हैं.
उसके बाद हैं एडवांटेजेस। इस रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब हमने कहा कि डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं स्किन के ऊपर तो टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि ये डीप स्किन लेयर्स तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। लो रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट हो गया, और इसका लो रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट होगा, ये इसका बेनिफिट है। और इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि हमें रैपिड एक्शन नहीं मिलता। और इसके अलावा ट्रांसडर्मल रूट ऑफर द स्टडी लेवल ऑफ द ड्रग इन द सिस्टम, मतलब टाइम टेकिंग है ये सिस्टम। और सप्रेस फॉर द इनहेलेशन थ्रू द नोज जो है वो लोकल रूट लोकल एक्शन भी हो सकता है और सिस्टेमिक एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ जो कि रूट को सिलेक्ट करते वक्त लाजमी देखी जानी चाहिए, वी शुड कीप इट in mind that at first the patient state that patient is in syncope or in LOC, loss of consciousness और in the active form। उसके बाद फिर हम डोजेज फॉर्म डिसाइड करते हैं कि हमने इसको ओरल रूट से देनी है या फिर हमने इसको IV देनी है या फिर पेरेंट्रल रूट यूज़ करना है, मतलब कौन सा रूट देंगे। अगर पेशेंट सिनकोप में है तो ऑब्वियसली हम पेरेंट्रल रूट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जैसे इस टेबल में बताया हुआ है कि IV इंजेक्शन देंगे तो 30 to 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही हम उसको ओरल फॉर्म में देंगे तो 30 to 90 मिनट्स लगेंगे उस ड्रग को अपना काम करने के लिए। तो ये चीज़ें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले पेशेंट फैक्टर और ड्रग फैक्टर दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद रूट सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। Allah Hafiz. If you find any difficulty, you can ask me in the comment box.